بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آنگن ناول کی 4تھ ایپیسوڈ پڑھنے جا رہے ہیں، اور اگر آپ یہاں تک آ گئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تھینک یو۔ آئیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ رات 11 بجے کے بعد جب میراسنیں گا بجا کر چلی گئیں تو آپا ہولے ہولے کمرے سے نکل کر دالان میں آ گئی۔ شکنے پڑی ہوئی دری پر لڑکی ہوئی ڈھول بڑی سونی معلوم ہو رہی تھی۔ ماما کرسیاں اٹھا اٹھا کر کمرے میں رکھ رہی تھی اور ساتھ نہ جانے کیا تلاش کیے جا رہی تھی۔ ہائے جانے کہاں گئی، ملتی ہی نہیں، ناز جائے اس یاد کا۔ عالیہ بھٹو سنو، جب میں چلی جاؤں اور تم کو کبھی صفدر بھائی ملیں تو میرا ایک پیغام کہہ دینا۔ کہہ دوں گی نا۔ بستر پر لیٹے ہی آپا نے بڑی بے چارگی سے کہا۔ کیا آپا؟ آپا کو عجیب سی حالت میں دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ یہی کہ میں ان کو کبھی نہیں بھولی، اور بس اب سو جائیے آپا۔ باہر کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ جانے کس وقت سو گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو آپا بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ وہ اسکول جانے کے لیے تیار ہوتی رہی مگر آپا نہ اٹھی۔ جب سب لوگ چائے پینے کے لیے اٹھے تو اماں نے ماما کو بھیجا کہ آپا کو جگا کر چائے دے دے۔ ماما کی چیخ کی آواز سن کر ابا اور اماں آپا کے کمرے کی طرف بھاگے۔ ماما سینے پہ دو ہتھر مار مار کر کہہ رہی تھی، تہمینہ بیٹا نہیں رہی، کہاں گئی، کہاں چلی گئی؟ وہ مارے خوف کے کانپنے لگی۔ وہ جانے کیسے کمرے تک گئی جہاں ابا بے ہوش ہوئی اماں کو تھامے کھڑے تھے، مگر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بھی گر پڑیں گے۔ آپا سچ مچ میں نہیں رہی تھیں۔ ان کی مہندی رچے ہاتھ بڑی بے بسی سے پھیلے ہوئے تھے اور ہونٹ اس طرح سیاہ ہو رہے تھے جیسے کسی نے مسی لگا دی ہو۔ اماں ہوش میں آتے ہی پچھاڑے کھا رہی تھیں۔ ابا بچوں کی طرح رو رہے تھے اور وہ آپا کے ٹھنڈے جسم سے لپٹی بلک رہی تھی۔ ابا نے جلدی سے آنسو پوچھ لیے۔ ہمیشہ سے دل کمزور تھا، اس لیے دل کی حرکت بند ہو گئی ہے۔ ماما تم جا کر پانی گرم کرنے کا انتظام کرو، اللہ کو یہی منظور تھا۔ ابا کی آواز کانپ رہی تھی۔ ماما کے باہر جاتے ہی ابا نے اماں سے سرگوشی کی، تم ہمت سے کام لو، ہم مصیبت میں پھنس گئے ہیں، میت کو جلدی سے اٹھانا ہے۔ اماں کو چھوڑ کر انہوں نے اسے لپٹا لیا اور دوسرے کمرے میں لے گئے۔ تم تو بڑی سمجھدار ہو، تم یہیں بیٹھو۔ ابا اسے اکیلے کمرے میں چھوڑ کر چلے گئے، مگر اس وقت تو ابا کا حکم ماننا اس کے بس میں نہ تھا۔ وہ جا کر دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی۔ ابا اماں کو سمجھا رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک پرزہ تھا جسے انہوں نے ماچس سے جلا دیا اور پھر اماں کو تھام کر دالان میں لے آئے۔ ماما نے پتیلے میں پانی چڑھا کر اس وقت صبح ہی صبح دری بچھا دی، پر ڈھول کس کر نہ ڈالی۔ ابا کے دوستوں کی بیویاں آ رہی تھیں، پر کوئی دری پر پیسے نہ پھینک رہا تھا۔ سب رو رہی تھیں اور ان کے بیچ میں بیٹھی ہوئی اماں کو بار بار غش آ رہا تھا۔ آپا کو جلدی جلدی نہلا دھلا کر رخصت کر دیا گیا۔ اماں پاگلوں کی طرح ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ ارے بیٹا، بڑی بٹیا رخصت ہو گئی، تم گاؤ نا، کاہے کو بیاہائی بدیس لکھیا بابل مورے۔ ماما کی بات پر جیسے کہرام مچ گیا۔ وہ آپا کے کمرے میں بھاگ گئی تھی اور زمین پر بیٹھ کر دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ جلے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے ادھر ادھر اڑتے پھر رہے تھے۔ ہائے کیسی ارمانوں بھری چلی گئی۔ ماما بولائی ہوئی کمرے میں آئی اور ادھر ادھر کچھ تلاش کرنے لگی۔ کل سے افیم کی ڈبیا کھوئی تو پھر نہ ملی، ایک ذرا سی کھا لیتی تو دل ٹھہر جاتا۔ بڑے چچا بڑی چچی اور ماموں آئے، وہ 2 دن رہے، پھر سب رو پیٹ کر چلے گئے۔ ماموں کی انگریز بیوی نہ آ سکی تھی کیونکہ ان دنوں وہ ماں بننے والی تھی، اور جمیل بھیا بھی تو نہ آئے تھے، ذرا اپنی ہونے والی دلہن کی تربت ہی دیکھ لیتے۔ اس قصے کے بعد اماں کیسی چپ اور گھٹی گھٹی رہتی۔ اس کے بعد تو صرف وہی ان کے محبت کا مرکز رہ گئی تھی، ہر وقت نظروں میں رکھتی۔ ذرا دیر کو پاس سے ہٹتی تو اماں کو اختلاج کے دورے پڑنے لگتے۔ ابا اماں سے کتنے دور ہو گئے تھے،
दफ्तर से आकर बैठक में ही हाथ मुंह धोते, वहीं चाय पीते और खाना खाकर रात 11 बजे तक दोस्तों की जमघट में बहस व मुबाहिसा करते। रात जब सब सो जाते तो चुपके से आकर अपने बिस्तर पर दुबक जाते। आपा के मरने के बाद सन्नाटा हर तरफ डराता फिरता और कोई भी नजर ना आता जो इस सन्नाटे को तोड़ दे। सफदर भाई की फिर कोई खबर ना लगी। इन्हें जमीन निगल गई या आसमान, वो तो इनके पत्ते के लिए तरसती रही थी। वो इन्हें लिखना चाहती थी कि कब्र के पास काफी जगह है, अगर मोहब्बत करते हो तो फिर आ जाओ। इस दिन जब अब्बा बैठक में आए तो कोई साथ ना था। वो जल्दी से इनके पास चली गई। कितनी मुद्दत हो गई थी वो अब्बा के पास ना बैठी थी, इनसे कोई बात ना कर सकी थी। अब्बा, आप घर में नहीं आते, किसी से नहीं बोलते, इस न जाते इस न जाते ही अब्बा से कहा था। इसकी आवाज़ भरा रही थी। अब्बा ने घबरा कर इसके सर सीने से लगा लिया था। तुम्हारी माँ ने मुझे घर से दूर कर दिया है, तुम सबको कुछ मालूम है। इसका कितना जी चाह रहा था कि अम्मा ने किसी को घर से दूर नहीं किया। सफदर भाई ने सबको एक दूसरे से जुदा कर दिया है। फिर आप तो अंग्रेज दुश्मनी में ऐसे मसरूफ हैं कि पीछे मुड़कर देखते ही नहीं। आप मोहब्बत को पहचानते ही नहीं। मगर ये सब कुछ ना कह सकी। इसे खुद हैरत थी कि अब्बा की बेइतनाइयों के बावजूद वो इन्हें सबसे ज्यादा क्यों चाहती थी। कैसा जहां आबाद था अब्बा की शफीक आंखों में। वो अब्बा के खिलाफ कभी एक लफ्ज भी तो न बोल सकी। तुम्हारी अम्मा ने मुझे कभी न समझा, उन्होंने मेरी किसी ख्वाहिश का साथ ना दिया। अगर मुझ में भी तुम्हारे बड़े चचा जैसी जुर्रत होती तो आज मैं इतना मजबूर ना होता। अब्बा जाने ये क्या कहने वाले थे कि राय साहब आ गए। आपा की मौत ने इसे अपनी उम्र से 10 साल आगे बढ़ा दिया था। वो अम्मा की दिलजोई करना चाहती थी, अब्बा को घर वापस लाने के लिए बेकरार थी। वो इन्हें सियासतबाजी से हटाना चाहती थी। इसकी शिकायत के बाद अब्बा थोड़ी थोड़ी देर के लिए घर में बैठने लगे, मगर ऐसा लगता कि अम्मा से कतरा रहे हैं। और अम्मा जब इनसे आंखें चार करती तो चेहरे पर बीते दिनों की याद लरजने लगती और वो सफदर भाई के लिए सोचती रह जाती। किस कदर ठाठ से इस शख्स ने एक खत लिखकर आपा को मौत के मुंह में धकेल दिया था। आपा की मौत को कई महीने हो गए थे, मगर अम्मा ने इनकी किसी चीज को इधर से उधर ना किया था। आपा का पलंग इसी तरह पड़ा था, इनकी किताबें इस तरह रखी थी। वो जब इनके कमरे में जाती तो ऐसा महसूस होता कि दिल डूब जाएगा। अम्मा ने इनके जहेज के बक्स भी इस कमरे में लगवा दिए थे। इन्हें देखकर इसे अजीब सी बेबसी का एहसास होता। कुछ दिन बाद आपा के जहेज के बॉक्स में चीकर घुस गए। सब कुछ चाट जाएंगे, बरसात में लचका गोटा स्याह पड़ जाएगा। वो सोचा करती। मैट्रिक का इम्तिहान देने के बाद वो बिल्कुल बेकार हो गई थी। दिन काटे ना कटते। इस दिन वो यूं ही आपा की किताबें उठाकर पढ़ने लगी। कितने इश्क व मोहब्बत से भरपूर किस्से थे। औरतें मोहब्बत में खुदकुशी करके मिसाली वफा पेश कर जाती और मर्द किसी तारीख रात में कब्र पर शम्मा रोशन करके चले जाते और बस किताबों को अलमारी में पटक कर वो मारे झल्लाहट के रोती रहती थी और आपा आंसुओं के पर्दों के उस पार बड़ी हकारत से इसको देखती रहती। दो तीन दिन इस 2-3 दिन से अब्बा सख्त मसरूफ थे। दफ्तर से भी बड़ी देर में आते। इनका अंग्रेज अफसर मुआयने के लिए आने वाला था। अब्बा हर चीज़ ठीक कराने के अलावा डाक बंगले में इसके रहने का इंतज़ाम भी करा रहे थे। आपा के हाथों के कड़े हुए कई मेज़पोश और गुलदान भी चपरासी मांग ले गया था। खूब अंग्रेज़ों को गालियाँ देते हैं और अब वो आ रहा है तो मारे डर के सिटी गुम है। हजरत की ज़बानी जमा खर्च करने में कैसे तेज़ होते हैं लोग भी। अम्मा बड़े फ़ख्र और तंज से हंसती तो इसके तन बदन में आग लग जाती। काश वो एक जरा देर को अम्मा की अम्मा बन सकती तो फिर बताती कि छेड़खानी करने का क्या फायदा होता है। अब्बा घर से दूर होते जा रहे थे और अम्मा अपने हाल में मस्त थी। रात अब्बा थके हारे वापस आए।
تو اس سے کہا تھا بیٹی تم رات کے کھانے کا ذرا اچھا سا انتظام کرا دینا، ایک 6-7 آدمیوں کا کھانا ہوگا، بس صبح وہ معائنہ کو آ رہے ہیں، رات ہمارے گھر دعوت ہو گئی۔ بھائی حد ہے، خالی خولی نفرت کرتے ہو اور خوشامد میں لگے ہو اس کے۔ ارے مجھ سے کہو میں خود دعوت کا انتظام کر دوں گی۔ آخر اماں ابا کے سامنے بھی نہ چونکی، میں نے خوشامد نہ کی تو پھر تم بھیک جو مانگنے لگو گی۔ ابا جلدی سے باہر چلے گئے اور وہ اماں سے ایک لفظ نہ کہہ سکی۔ ان کی اجاڑ صورت دیکھ کر رحم آنے لگتا۔ دوسرے دن ابا تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر اسٹیشن چلے گئے۔ اماں اپنے پلنگ پر پاؤں لٹکائے بیٹھی بڑے طنز سے ہنستی رہی، مگر ابا نے ان کی طرف نہ دیکھا۔ دن کا 1 بج گیا مگر ابا کھانے پر بھی نہ آئے۔ وہ اماں کے ساتھ رات کی دعوت کے انتظام میں مصروف رہی۔ اس نے بیٹھک کو بڑے نئے طریقے سے سجایا تھا اور گیس کے 2 ہانڈے منگوا کر اچھی طرح صاف کرا لیے تھے۔ اماں کئی قسم کے کوفتے اور کباب تیار کرا رہی تھیں اور ایک ساتھ چیخے جا رہی تھیں کہ مسالے بغیر مرچ کے پسا جائے۔ اماں نے اتنی لگن سے کبھی کسی کی دعوت کا انتظام نہ کیا تھا۔ کھانا بس تیار ہی تھا کہ چپراسی بوکھلایا ہوا آیا، بغیر آواز دیے گھر میں گھس آیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بڑی دور سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ بیگم صاحب اپنے بابو جی کو پولیس پکڑ لے گئی ہے، معائنے کے وقت افسر سے جھگڑا ہو گیا اور اپنے بابو جی نے رول سے اس کا سر پھاڑ دیا۔ اماں نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا جیسے ان کے چاروں اور اندھیرا چھا گیا ہو، پھر انہوں نے چیخنا چاہا تو بس منہ کھول کر رہ گئیں۔ دعوت کا سامان پر مکھیاں بھنک رہی تھیں۔ کہاں ہے ابا؟ میں ان کے پاس جاؤں گی۔ وہ پاگلوں کی طرح اٹھ کر بھاگی تھی مگر چپراسی اس کے سامنے دیوار بن گیا تھا۔ آپ کہاں جائیں گی بٹیا بی بی؟ تو میرے سر چڑھاتا تو میرے سر چڑھتا ہے۔ اس نے چپراسی کو مارنے کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا دیے تھے۔ میں تو بٹیا بی بی کے غلام ہوں، آپ کہاں جائیں گے بابو جی؟ تو تھانے میں ہے۔ چپراسی نے صافے کا پلو آنکھوں پر رکھ لیا۔ ڈیم پھول کہتا تھا اپنے بابو جی کو حرام زادہ۔ چپراسی نے سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے مل جائے تو 1001 انگریز صدقہ کر کے پھینکوں اپنے بابو جی پر سے۔ خون چڑھ گیا ہے میری آنکھوں میں، خون۔ ذرا دیر میں رائے صاحب آ گئے۔ اماں دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو کر ان سے باتیں کر رہی تھی۔ انہوں نے ماموں کا پتہ دے دیا تھا کہ انہیں تار کر دیا جائے، مگر اس نے جلدی سے بڑے چچا کا پتہ بھی دے دیا۔ وہ تو بڑے چچا کو صرف 2 ہی بار دیکھ کر ان کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ اگر بڑے چچا نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ ماموں کتنی صفائی سے کہہ گئے تھے کہ اقدام قتل بہت بڑا جرم ہے، ایسے آدمی کی بیوی بچوں کے سرپرستی کرنے میں انہیں بھی خطرہ تھا۔ اماں تو اس سے یہ بات صاف چھپا گئی تھی، مگر اس نے برآمدے میں کھڑے ہو کر خود اپنے کانوں سے سنا تھا۔ اسے ماموں اور انگریزوں سے اس دن اتنی نفرت ہوئی تھی کہ جی چاہتا تھا سب کی بوٹیاں چبا ڈالے۔ بڑے چچا نے آ کر سب کو سروں پر ہاتھ رکھ دیا، 2 دن کے اندر سامان بندھوا کر ٹانگوں پر لدوایا۔ بڑے چچا کھلے خزانے انگریزوں کو گالیاں دے رہے تھے۔ ابا کے انجام سے ان کا جوش اور بھی بڑھ گیا تھا۔ جب بڑے چچا ابا کے دوستوں سے رخصت ہو رہے تھے اور اس کا تانگا آہستہ آہستہ رینگنے لگا تھا، اس نے دیکھا کہ اس کے اسکول کی نگران بڑی تیزی سے چلی آ رہی تھیں۔ تانگے کے پاس آ کر اس نے اپنی پھولی ہوئی سانس درست کی اور پھر پیار سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم لوگ خوش رہنا، غم نہ کرنا، تمہارا فادر بہت اچھا آدمی تھا۔ تمہارا ملک ضرور آ جاؤ گے، تمہارا ملک ضرور آزاد ہوگا۔ نگران رینگتے ہوئے ٹانگے سے الگ ہو گئی۔ گڈ بائی، گڈ بائی۔ ابا جیل کی سلاخوں کے پیچھے تمہارا کیا حال ہوگا؟ وہ اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی، کھڑکی کے پٹ کھول دیے تو ہوا کا ایک سرد جھونکا اس کو چھو کر گزر گیا۔ اس کے سر مارے درد کے پھٹا جا رہا تھا۔ کاش نیند آ جائے یا پھر صبح ہو جائے۔ وہ پھر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح ہو گئی، بادل پھٹ گئے تھے
और इधर खुली खिड़की से सूरज की किरणें अंदर दाखिल हो रही थीं। रात सिर्फ एक आधा घंटा सोने की वजह से आंखों में खटक हो रही थी। ऐसा मालूम होता जैसे आंखों में पलकें टूटकर गिर पड़ी हों। अरे वाह, आप अभी तक सो रही हैं। शमीमा का रंग इस वक्त बड़ा निखरा हुआ लग रहा था। आलिया ने इसे बड़े गौर से देखा। ऐसी मासूम सूरत, लगता फरिश्तों ने साया कर रखा है। मैं तो देर से जाग रही हूँ। वो हमेशा की तरह बिस्तर से उछल कर उठी, लेकिन एकदम से याद आया कि वो नई जगह पर है, ये नई दुनिया है, और अब्बा का मुशफ़िक़ाना ठंडा साया इससे बहुत दूर है। मैंने अभी नाश्ता नहीं किया, आपका इंतज़ार कर रही थी, और सब लोग तो कब का खा पी चुके। शमीमा ने बड़ी फ़ख्र से कहा। भई, तुमने भी नाश्ता कर लिया होता। छम्मी, वो जल्दी से इसके साथ हुई। वाह, मैं क्यों नाश्ता करती आपके बगैर। यहाँ तो किसी को किसी का ख्याल नहीं, सब के सब खुदगर्ज हैं। छम्मी ने बुरा सा मुंह बना लिया। सीढ़ियां तय करके दोनों निचली मंजिल में आ गईं। बरामदे में पड़े नाट टाट के पर्दों के सुराखों से धुआं निकल रहा था। अम्मा और बड़ी चच्ची तख्त पर बैठी बदकली पानदान से पान बना बना कर खा रही थीं। तख्त पर बिछी हुई मैली चादर पर कत्थे चूने के 50 धब्बे लगे हुए थे, और करीमन बुआ चूल्हे के पास पेड़ी पर बैठी धुआंधार किस्म की बातों में मसरूफ थी। उठ गई आलिया। मैंने तुमको इसलिए जल्दी नहीं उठाया कि जाने नई जगह पर अच्छी नींद आई हो या नहीं। बड़ी चच्ची ने इसे अपने पास बिठा लिया। मैं तो खूब सोई थी बड़ी चच्ची। इसने अपनी माँ की तरफ देखा। इनके चेहरे पे शब बेदारी और फकरों की धूल उड़ रही थी। अल्लाह मारा, पराठा तो रखे रखे सूख गया। अब क्या स्वाद रह गया होगा। करीमन बुआ ने तो तवा चढ़ाकर पराठा गर्म होने के लिए डाल दिया। घी में गुंधी हुई पूरियां हो तो 10 दिन भी ना सूखे। बस जमाने जमाने की बात है। करीमन बुआ ने ठंडी सांस भरी। सारा सामान इस तरह बंधा पड़ा है। नाश्ता कर चुको तो इसे खुलवाओ, अम्मा ने आहिस्ता से कहा। लो भला, ये क्या खुलवाएगी जमील और शकील आकर सब खोल लेंगे। आलिया तो ऊपर का कमरा पसंद करेगी, अकेले में मजे से पढ़ेगी। पहले वहाँ जमील रहता था, मगर इसने रात ही कह दिया कि वो कमरा आलिया को दे दो। और दुल्हन, तुम तो यहीं मेरे पास रहोगी ना। बड़ी चच्ची ने अम्मा से पूछा। हाँ, यहीं रहूंगी। अम्मा एक लम्हे तक कुछ सोचने के बाद बोली। शायद इन्हें वो जमाना याद आ गया होगा जब वो बड़ी चच्ची को मुंह लगाना पसंद ना करती थी। बेचारी बड़ी चच्ची लुटे पिटे घर की लड़की थी। मंगनी हो गई थी, इसलिए दादी ने मजबूर होकर ब्याह लिया था, क्योंकि बड़े चचा जिद कर रहे थे। वैसे दादी का तो पक्का इरादा था कि जब दौलत ना रही तो मंगनी भी तोड़ दी जाए। सूखी हुई घी चिपड़ी रोटी और थोड़े से दूध में उठी हुई चाय पीते हुए आलिया को एहसास हुआ कि घर की इक्तसादी हालत अच्छी नहीं है। कैसे मज़े का पराठा है। वाह वाह, बिल्कुल करीमन बुआ की खाल की तरह खुश्क है ना बजिया, खुश्क है ना बजिया। आखिरी बात छम्मी ने इतने धीरे से कही कि करीमन बुआ सुन ना सकी। मज़े के तो हैं छम्मी, आलिया ने अपनी हंसी रोकी। अल्लाह ने चाहा तो आलिया को और मजहर की दुल्हन को यहाँ कोई तकलीफ ना होगी। अच्छे दिन नहीं रहे मगर जमील पास हो गया तो फिर इस घर के दिन पलट जाएंगे, और फिर अपना मजहर भी तो छट छट कर आ जाएगा, छूट कर आ जाएगा। बड़ी चच्ची कुछ कहते कहते चुप हो गई। इन्हें अगर अपने बाल बच्चों की फिक्र होती तो आज जेल में क्यों होते। अंग्रेजों ने इनका क्या बिगाड़ा था भला। अम्मा ने लंबी सांस भरी और फिर सर नीचा करके चुपके से आंसू पोंछ लिए। जरा देर के लिए सब चुप हो गए, जैसे कुछ सोचने लगे। अल्लाह तो इसके घर को भी मुसीबत से बचाना, करीमन बुआ आहिस्ता से बड़बड़ाई। करीमन बुआ दुकान जाने की देर हो रही है, नाश्ता भिजवा दो। बैठक से एक बड़ी नफीस सी आवाज आई, और करीमन बुआ ने जुमला कर चिमटा पटका, फिर ढेला से एक रोटी खींच कर निकाल ली। मैली कुचैली प्याली में चाय उंडेल कर कमर टेढ़ी किए किए बरामदे से निकल गई। खूब है,
ये इसरार मियाँ भी, भाई हद है बेशर्मी की। जब तक खाने को ना मिल जाए मजाल है कि चैन ले लें। इन्हें तो बस करीमन बुआ ठीक करती हैं। छम्मी जोर से हंसी। अच्छा, तो ये अब तक यही है? ये बड़े भाई का कारनामा होगा। हाँ वही है। कहाँ जाए ये बेचारा भी? फिर दुकान भी तो देखता है। बड़ी चच्ची ने मुजरिमों की तरह सर झुकाकर अम्मा को नीची नीची नजरों से देखा। खूब, अम्मा ने बड़ी मायने खेज अंदाज से कहा और छालियां काटने लगी। यहाँ वो किस कदर अलग थलग और ऊंचे पर बैठी हुई नजर आ रही थी। आलिया ने सब कुछ खामोशी से सुना और हमदर्दी की एक लहर इसके सीने के पार हो गई। हाय, अगर बेचारे इसरार मियाँ के दूसरे भाई आमों की मक्खियाँ भिनकी गुठलियाँ ना चूसते तो शायद आज जिंदा होते। इसरार मियाँ के साथी तो होते। अब ये बेचारे तन्हा इतने बहुत से जायज लोगों के बीच में कैसे जिंदा होंगे? जरा देर अपनी दादी के पास जाकर बैठो, अम्मा ने इसे हुक्म दिया और वो जल्दी से जाने के लिए उठ खड़ी हुई। आपा की मौत और अब्बा की गिरफ्तारी ने इसे बड़ा सआदतमंद बना दिया था। शायद इसी तरह अम्मा को खुशी महसूस हो। शाम के वक्त तो दादी से कोई बात ही ना हुई थी। एक तो सफर की थकान थी, दूसरे दादी पर दम्मे ने हमला कर रखा था। आलिया को देखते ही दादी ने अपने दोनों हाथ फैला दिए। दुबले दुबले मुरझाए हुए हाथों की खाल लटकी हुई थी, मगर इंतहाई कमजोरी के बावजूद इनके चेहरे से रोब व दाब बरस रहा था। आलिया ने बड़ी अकीदत से इनके फैले हुए हाथ थाम लिए और अपना सर हौले से इनके सीने पर टिका दिया। छम्मी अपने उल्टे पुल्टे बिस्तर को ठीक कर रही थी। ताक में रखी हुई लालटेन को अब तक किसी ने ना बुझाया था। मजर तो फिर कभी ना आया। मेरी आंखें इसे देखने को तरस रही हैं। दादी ने ठंडी सांस भरी और हालिया ने होंठ भींच लिए। दादी से तो सब छुपाया था कि इनका बेटा जेल में है, और वो भी इक़दाम कत्ल के सिलसिले में। छुट्टी नहीं मिलती दादी। अब इनका काम बढ़ गया है, इसीलिए तो इन्होंने हम सबको यहाँ रहने के लिए भेज दिया है। वो दादी की नज़रों से बचने के लिए इधर उधर देखने लगी। शुक्र है कि फिर सब इकट्ठे हो रहे हैं। क्या पता तुम्हारा छोटा चच्चा भी आ जाए। दादी की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। छम्मी ने लालटेन की चिमनी ऊंची करके फूंक मार दी। लंबे से कमरे में 2 इंच ऊंची स्याह रंग की मसहरियों और 2 कुर्सियों के सिवा कुछ भी न था। दीवार पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर की एक तस्वीर लगी हुई थी, जिसके फ्रेम पर जाने कितने अंधियों का गुबार जमा था। मगर बेटे का कोई खत भी आया? नहीं दादी, वो बहुत मसरूफ रहते हैं। अब्बा की याद से इसका दिल कट रहा था। ठीक है, मर्दों की यही शान है कि काम करें। तुम्हारा छोटा चच्चा, दादी तकिए के सहारे जरा सी ऊंची हो गई। तुमको पता है ना कि वो खिलाफत के जमाने में चला गया, फिर नहीं आया। इस वक्त खिलाफत का बड़ा जोर था। मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं, मगर दूसरे घरों में औरतें टोपियां काढ़ काढ़ कर चंदे देती थी। उन्होंने गाने बना रखे थे। क्या था वो भला सा गाना? दादी तेवरियों पर बल डालकर सोचने लगी। हाँ, वो याद आया। बूढ़ी अम्मा का कुछ नम ना करना, जान बेटा खिलाफत पर दे दो। सॉरी, बूढ़ी अम्मा का कुछ गम न करना, जान बेटा खिलाफत पर दे दो। ये सब भूल ये सब फजूल बातें हैं। इसी तरह तुम्हारे बड़े चचा बेवकूफ़ी में फंस गए हैं, मगर अब मेरी बात सुनता कौन है? खैर, कभी तो अकल आएगी। और है कितना गंदा कमरा हो रहा है। इस पर से दादी की थूक और पेशाब की बू। मगर मैं अपनी दादी को किसी और कमरे में थोड़ी रहने दूंगी। ये तो मेरा अपना कमरा है। बड़ी चच्ची कहती हैं कि मैं इसी कमरे में पैदा हुई थी। छम्मी जल्दी से कमरे में चली गई और फिर झाड़ू लिए हुए वापस आ गई। आज सफाई का बहुत ख्याल आ रहा था। गंदे कमरे की वजह से वो शर्माकर आलिया की तरफ देख रही थी, और आलिया सोच रही थी कि अब्बा कहाँ होंगे, किस जेल में होंगे, इनका खत कब आएगा। इतनी सी बातें करने से भी दादी की सांस फूलने लगी। मगर जब छम्मी ने झाड़ू देकर धूल उड़ानी शुरू की तो इन्हें जोर का दौरा पड़ गया। मारे खांसी के इनकी सांस
इनसे सांस न ली जाती। आलिया घबरा कर इनके सीना सहला रही थी, मगर छम्मी बड़े इत्मीनान से झाड़ू दे रही थी। दादी के चेहरे से पसीना बह रहा था और मारे कर्क की आंखें उबली पड़ी थी। आलिया घबरा कर खड़ी हो गई। करीमन बुआ झपट कर अंदर आईं और दादी के पास बैठ गईं। इनके दोनों हाथ आटे से भरे हुए थे। मालकन, मालकन, करीमन बुआ अजीब सी बेताबी के साथ दादी को सहला रही थी और एक हाथ अपने सीने पर रखे जैसे अपने दुपट्टे डूबते हुए दिल को रोक रही थी। अरे छम्मी, बड़ी चच्ची से कहो जल्दी से डॉक्टर को बुलाए। आलिया पहली दफा दम्मे का इतना शदीद हमला देख रही थी। हद कर दी भजिया, भला इतनी सी बात पर डॉक्टर आया करते हैं। दादी को तो इस तरह दौरा पड़ता है। सिरहाने खमीरे की डब्बियां रखी है, जरा सा चटा दीजिए। इतने पैसे कहाँ के हर वक्त डॉक्टर को बुलाया जाए। आप तो ख्वामख्वाह घबरा गईं। छम्मी दुपट्टे में मुंह छुपाकर अपनी हंसी रोकने लगी। आलिया ने हैरान होकर छम्मी को देखा। वो दहलीज से बाहर कूड़ा फेंक रही थी। क्या वो भी यहाँ बीमार पड़ेगी? इसने डर कर सोचा। अब्बा तो जरा सी छींक पर डॉक्टर को बुलवा लेते थे, लेकिन यहाँ तो छम्मी डॉक्टर के नाम पर हंसती है। खांसी की आवाज सारे घर में गूंज रही है, मगर ये आवाज सिर्फ सिर्फ करीमन बुआ को सुनाई देती है। सब अपने कामों में लगे हुए हैं, कोई इधर नहीं आता। जरा देर बाद दादी की सांस ठीक हो गई और वो जैसे थक कर लेट गईं। करीमन बुआ इनके चेहरे से पसीना पोंछ रही थी। अब क्या हाल है मालकिन? कैसी तड़प थी करीमन बुआ की आंखों में? दादी ने करके आंखें बंद कर लीं। तो फिर करीमन बुआ को आटा गूंदना याद आया। छम्मी को बुलाओ, दादी ने आहिस्ता से कहा तो वो कमरे की दहलीज पर खड़े होकर छम्मी को आवाज देने लगी। कहिए, जब मुंह धो लूंगी तो आऊंगी। हर वक्त बुलाती रहती हैं। सैन में बिछी हुई चौकी पर छम्मी बैठी मुंह धो रही थी। जाने वो और क्या बड़बड़ाती रही। दादी के रोग की सारी कहानियां इसकी आंखों के सामने अड़ अड़ धम हो गईं। जल्दी चलो आलिया, सामान ठीक करा लो। बरामदे से अम्मा की आवाज आई तो वो चुपके से दादी के पास से सरक आई। वो इस वक्त आंखें बंद किए बड़े सुकून से सो रही थी। जमील भैया को इस वक्त इसने बड़े गौर से देखा। वो अच्छे खासे थे, मगर इनकी आंखें छोटी थीं और अंदर को धसी हुई थीं। फिर इन आंखों में ऐसी गहराई थी कि गौर से देखते हुए झिझक महसूस होती। इस वक्त वो सब सामान ठिकाने लगाने के बाद जैसे थककर दालान की मेहराब के बीचों बीच अकड़ू बैठे थे। अम्मा बहुत बेजार नजर आ रही थी। बस कुछ ऐसी कैफियत जैसे किसी तवील सफर से दो चार हो गई हो और मंजिल बहुत दूर हो। ये सफर कब खत्म होगा? आलिया ने अपने आप से पूछा और फिर अपने बिस्तर बंद की तरफ बढ़ी, जो सहन में एक तरफ पड़ा हुआ था। इसका बक्स और बिस्तर ऊपर की मंजिल के छोटे कमरे में जाना था। मैं ले चलती हूँ बजिया। छम्मी के गरारे की फटी हुई गोद जमीन पर लौट रही थी। वो बिस्तर बंद के तस्मे घसीटने लगी। तुम हट जाओ बेवकूफ। जमील भैया बड़ी तंद्री से उठकर छम्मी के हाथ से तस्मे खींचने लगे। जरा होश में रहिएगा भैया। हाँ, मैं बजिया की वजह से आपको जवाब नहीं देना चाहती, वरना छम्मी का चेहरा सुर्ख हो गया। हट जाइए, मैं खुद ले जाऊंगी बजिया का बिस्तर। छम्मी ने जमील भैया का हाथ झटक दिया और बिस्तर बंद घसीट घसीट कर जीनों पर चढ़ाने लगी। जमील भैया चौकी पर बैठकर जैसे बड़े मजे से तमाशा देखने लगे। बिस्तर बंद की रगड़ से ढेरों धूल उड़ रही थी। अरे छम्मी गिर जाएगी, क्यों अपनी जान के लागू रहती है। बड़ी चच्ची पान लगाते लगाते घबरा कर उठ गई। गिरने दो अम्मा, कभी तो मैं भी इसे बेबस देखूं। जमील भैया खिसिया कर हंसे। वाह क्या बात है, बेबस देखकर खुश होते हैं जमील भैया। फिर इसे और अम्मा से तो बहुत खुश होंगे। आलिया ने जरा तंज से जमील भैया की तरफ देखा और फिर नजरें झुका ली। वो तो पहले ही इसे कन अखियों से देख रहे थे। वो जल्दी से छम्मी के पीछे हौली, मगर बिस्तर बंद पहले ही ऊपर जा चुका था। छम्मी इसे देखकर बड़े फखर से मुस्कुराई। देखिए बजिया, मैं ले आई ना अकेले। बड़े आए जमील भैया, जरा सामान उठाकर थक बैठे थे। बिस्तर बंद ऊपर चढ़ाते
तो हाँफने लगते। वो जोर से हंसी। अरे ये गोट भी फट गई। इसने पजामे की गोट इस तरह देखी जैसे अभी देख रही हो। अब भला वो कैसे कहती कि ये गोट तो इस वक्त भी फटी हुई थी जब इसे पहनने के लिए बक्स से निकाला था। ये बरसों पुराने कपड़े तो इसकी अम्मा मरहुमा के थे जो अब इसके तन ढांक रहे थे। आलिया छम्मी के साथ मिलकर बिस्तर बंद खोलने लगी। शाम का झटपटा हुआ चला था मगर अभी गली में रोशनी न हुई थी। रात को वो जिस बिस्तर पर लेटी थी इसे समेट के अपना बिस्तर लगा दिया। इतने में जमील भैया इसका बक्स उठाए आ गए। आलिया, ये कमरा तुम्हारे लिए ठीक रहेगा ना? पहले मैं इस कमरे में रहता था। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि गली से बिजली की खैराती रोशनी भी मिल जाती है। मैंने यहीं बीए की तैयारी की, वरना लालटेन की रोशनी में तो आंखें फूट जाती। ये बड़ा कमरा भी खाली रहता था। यहाँ कोई नहीं आता था। बस किसी किसी वक्त कोई चिमगादड़ आ जाती थी। जमील भैया ने कन अखियों से छम्मी को देखा मगर वो बड़ी खामोशी से कमरे के बाहर खुली छत पर जा खड़ी हुई थी। क्या आपा की शादी इस बदतमीज से हो रही थी? इसने सख्त नागवारी से सोचा। अरे वो तो इसके साथ चंद दिन भी ना जीती। क्या ये वही शख्स है जिसके नाम आपा के साथ लेकर वो खुश होती थी? आलिया ने अपना बक्स ठिकाने लगा दिया और जमील भैया से कोई बात किए बगैर छम्मी के पास चली गई। जाते हुए इसने मुड़ कर देखा। जमील भैया जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रह गए थे। आपसे मिलने का इतना शौक था बजिया कि बस क्या बताऊं, छम्मी बोली। बड़े चचा और बड़ी चच्ची आपकी बड़ी तारीफ करते थे। आप पढ़ी हुई हैं ना, इसलिए बड़े चचा तहमीना आपा से जमील भैया की शादी करना चाहते थे। मैं तो जाहिल हूं ना बजिया। तुम तो बगैर पढ़े इतनी प्यारी हो छम्मी। मैं तो तुमसे मिलकर सबसे ज्यादा खुश हुई हूँ। इसने कहा। मैं खत भी लिख लेती हूँ और पढ़ भी लेती हूँ, बस स्कूल नहीं गई ना। छम्मी ने बड़े गौर से बताया, गरूर से बताया। तुम इससे मिलकर जरा भी खुश नहीं हो। तुम यहाँ किसी से भी मिलकर खुश नहीं होगी। तुम तो महज पढ़ी लिखी लड़की हो, लड़कियों वाला इखलाक दिखा रही हो, जमील भैया ने बड़े मजे में कहा और हाथ हिला हिलाकर छत पर टहलने लगे। किसी ने देखा ही नहीं कि वो कब आकर पीछे खड़े हो गए थे। पता नहीं आज जमील भैया को क्या हो गया है। आपको देखकर इनमें कुछ शान आ गई है बजिया। वैसे तो ये हाल था कि मेरे बगैर कोई काम ना होता। छम्मी ने तिरछी नजरों से जमील भैया को देखा। मैं कह रहा हूँ छम्मी कि अब तुम नीचे चली जाओ। जमील भैया जाने क्यों एकदम संजीदा हो गए। क्यों जाऊं? इस घर में मेरे बाप का भी हिस्सा है। जहाँ जहाँ चाहूंगी बैठूंगी। बड़े आए। अच्छा तो फिर मैं ही चला जाता हूँ। जमील भैया बड़ी तेजी से सीढ़ियां तय करने लगे। आलिया के लिए ये सारी बातें कितनी अजीब थी। इसने हैरान होकर छम्मी को देखा। बजिया, आप परवाह ना करें, यहाँ तो हरदम ऐसी बातें होती रहती हैं। छम्मी सख्त शर्मिंदा नजर आ रही थी। चलो मैं अपनी किताबें ठीक कर लूँ। इसे अचानक अपनी तालीम का ख्याल सताने लगा। अल्लाह मियाँ, अब वो कैसे पढ़ेंगी? रोपे का कहाँ से लाएगी? मगर जैसे ही इसे याद आया कि मामू के पास अम्मा ने ढेर सारे रुपए जमा करा रखे हैं तो इसने इत्मीनान की एक लंबी सांस ली। छम्मी को दादी का कोई काम याद आ गया। वो जल्दी से नीचे भाग गई। आलिया जब अपनी किताबें मेज पर रख रही थी तो इसे ये देखकर खुशी हुई कि जमील भैया इस पर मेज पोश बिछा गए थे। ये वही मेज पोश था जो रात जमील भैया की मेज पर बिछा हुआ था। चलो जमील भैया, इसकी तो इज्जत करते हैं। किताबें ठीक करके वो खिड़की से नीचे गली में झांकने लगी। बिजली के खंभे के तले रोशनी का गोल दायरा पड़ा हुआ था और गली के दूसरे सिरे से कोई फेरी वाला आ रहा था। इसके सर पर रखे हुए थाल में दो लोगों वाला चिराग जल रहा था। नीचे आओ आलिया बेटी, बड़ी चच्ची की भारी सी आवाज सुनकर वो जल्दी से उठ पड़ी। अम्मा ने दादी के कमरे से निकलते हुए कहा, रात की बारिश से सर्दी बढ़ गई थी, इसलिए तुम्हारी दादी की तबीयत ज्यादा खराब है। सर्दी तो इस मर्द की दुश्मन होती है। वो भी दादी के कमरे में चली गई। छम्मी अपनी मसहरी पर बैठे
बैठी पुराने कपड़ों की मरम्मत कर रही थी और बड़े मज़े में कोई पुरानी गज़ल गुनगुना रही थी। जिगर के टुकड़े हैं ये हमारे जो बन के आंसू निकल रहे हैं। आलिया को देखकर वो गाना भूल गई और पुराने कपड़ों के ढेर को लिहाफ के अंदर छुपाने लगी। अब तो दादी बिल्कुल ठीक है बजिया। आलिया दादी की पट्टी पर टिक गई। वो आंखें बंद किए बेसुध पड़ी थी। इनका सीना अब तक उभर उभर कर डूब रहा था। इसे बचपन में देखी हुई लोहार की धुन की याद आ गई। जाने ये जिंदगी की आग कब बुझ जाए। मारे हमदर्दी के इसकी आंखों में आंसू आ गए। बड़े ताक में रखी हुई लालटेन की रोशनी एकदम मद्धम लगने लगी। आलिया ने दादी के खुले हुए हाथों को चुपके से लिहाफ में छुपा दिया। करीमन बुआ कमर टेढ़ी किए हुए कमरे में आई और झुककर दादी को देखने लगी। मालकिन, उन्होंने धीरे से पुकारा और जवाब ना पाकर दबे कदमों चली गई। इनके हाथों में गीली राख भरी हुई थी। क्या दादी सो रही हैं? शकील दहलीज पर खड़े खड़े कमरे में झांका। सो रही हैं। फिर तुमको क्या फिर तुमको क्या? छम्मी ने इसे चिढ़ाने के अंदाज से जवाब दिया। बको मत, बड़ी आई, शकील हुंकारा। अरे दादी सो रही हैं, चुप रहो शकील मेरे भैया। आलिया घबरा कर खड़ी हो गई। मुझे कुछ पैसे चाहिए आलिया बजिया, किताबें खरीदनी है। दादी की तबीयत खराब है इस वक्त। आलिया ने इसे समझाना चाहा। अब धरी है ना इनके पास रोकड़, सब कुछ तो ले गया। पाँव दबा दबा कर चालाक छुम्मी मारे गुस्से के बुला रही थी। इतनी बहुत सी थी गुनिया, खा गए सारे मिलकर। इतनी कोई सलीस उर्दू में ये नॉवल लिखा हुआ है ना, बिल्कुल खालिस उर्दू में। तो वर्ड्स जो हैं वो मुझे पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मैं दोबारा यहाँ से रिपीट कर लेती हूँ। दादी की तबीयत खराब है इस वक्त। आलिया ने इसे समझाना चाहा। अब धरी है ना इनके पास रोकड़, सब कुछ तो ले गया। पाँव दबा दबा कर चालाक छम्मी मारे गुस्से के बुला रही थी। इतनी बहुत सी थी गुनिया, खा गए सारे मिलकर। तुमसे तो कभी पाँव भी ना दाबे गए। बेचारी दादी तड़प बड़ी तड़पती हुई होती हैं और ये लाट साहब मजे करती हैं। शकील ने जवाब दिया। मेरे मुंह ना लगना लगाकर कमीने, देख तू अभी बताती हूँ। छम्मी अपनी मसहरी से कूदी। दादी ने एक लम्हे को आंखें खोली और फिर गिरा कर करवट बदल ली। आलिया शकील को खींचती हुई बाहर ले आई। करीमन बुआ सैन में बिछी हुई चौकी पर लालटेन रख रही थी। इन्होंने मुंह ही मुंह में कुछ कहा और फिर बरामदे में चली गई। अरे शकील, अब तो तुम बड़े हो रहे हो, फिर भी लड़ते हो। छम्मी छम्मी भी तो तुमसे कितनी बड़ी है। आलिया ने इसके शाने को दबाया मगर वो कुछ न बोला। आस्तीन से आंसू पोंछकर सर झुकाए खड़ा रहा। लड़ना बुरी बात है मेरे भैया। आलिया ने उससे लिपटा लिया। दादी मुझसे मोहब्बत करती हैं। वो कहती हैं कि मैं छोटे चचा की तरह हूँ। बस इसीलिए छम्मी मुझसे जलती है। फिर दादी अब तक मुझे किताबों के लिए पैसे देती रही। ये बात छम्मी को सबसे ज्यादा बुरी लगती है। आप ही बताइए कि मैं किससे मांगू। अब्बा जमील भैया अम्मा सब पैसों के नाम पर चीखने लगते हैं। शकील ने मासूम बच्चों की तरह सिसकी भरी। मेरे पास 2 रुपए हैं, लोगे? आलिया ने पूछा तो शकील मारे खुशी के और जोर से लिपट गया। सुबह मुझसे रुपए लेकर किताबें ले आना। अच्छा बजिया। टाट का पर्दा सिरका। वो दालान में चली गई। अम्मा और बड़ी चच्ची तख्त पर बैठी थी। अम्मा बिल्कुल चुप थी मगर बड़ी चच्ची बड़ी फंदा पेशानी से बातें करते हुए छालियां काट रही थी।